Hi, hello, welcome to Drona Institute of Ayurveda and myself, Dr. Kirtana. Here we have Air 2024 topper, Dr. Kirti Parashar through Drona Institute of Ayurveda. Her hard work, passion, dedication towards institution and studies, everything counts, celebrating her success in AIAPGET 2024. Behalf of Drona Institute of Ayurveda, we are very proud to invite Dr. Kirti to share her overall experience of the fruitful success, and yes, we need some motivational tips she followed as a motivation for our upcoming PG doctors. You will be thinking, what is that motivational tips? Of course, how she studied, what rules she followed, when she studied, what timetable she made, and what was the time she scheduled, and many more. Let me connect Dr. Kirti and be ready for the same. Hi, Doctor. Thank you so much, ma'am. Good evening, ma'am. How are you, Doctor? Um, I want to thank you for such kind words, and I'm very happy to share all my journey with all my juniors, all the students who are preparing for AIPGT next year and further on. Okay, Doctor. Doctor, being an All India 5th rank holder and Drona first rank holder in AIPGT 2024, how do you feel now? Ma'am, I'm very happy and I'm also proud of myself for this achievement. It's really encouraged me to do more hard thing in my life. Yeah, I am very happy with my result. Ma'am, what was your study routine or timetable with time management you followed to become a topper? Ma'am, when it's come to my study routine, so as I'm from a repeater batch. So last year I couldn't make with a good rank because with internship it is not very easy for me to balance it with my intern duty and to study for like more hours. Like in my last year I tried to study but then I got distracted in between, तो मैंने बीच में ही छोड़ दी थी preparation. एंड देन फिर लास्ट टाइम जब प्रीपोन हो गया एग्जाम, तो वो मेरे लिए बिल्कुल स्ट्रेसफुल कंडीशन हो गई थी. मतलब मैं अपने खुद पे मतलब जो ट्रस्ट था वो कर नहीं पा रही थी कि क्या मैं अच्छी रैंक ला पाऊंगी इस ईयर, या मैं मतलब जो ट्रस्ट इश्यू होते थे कि जैसे मन में जो डर हो जाता है ना कि अब नहीं होगा, बहुत कम टाइम है, अब नहीं होगा. बट देन फिर मैंने अपने आप को फिर मोटिवेट किया कि नहीं, चलो जितने दिन है मैं उसमें जितना भी कर सकती हूँ मैं उतना प्रिपेयर करूंगी. देन वो बाद में रिजल्ट के ऊपर है कि जो भी रिजल्ट रहेगा वो अच्छा रहे या बुरा, बट मैं अपना 100% दूंगी जो अब मैं दे सकती हूँ. That's very graceful, ma'am. And one more, ma'am. What all study material you have followed to achieve your success? And I think that will be really helpful Sorry, for ma'am. your juniors. Sorry, ma'am, can I? Ma'am, Sorry, ma'am. what all study materials you have followed to achieve your success? And that will be very, very helpful for your juniors that are awaiting for such a good result. Ma'am, so last year, as I told you, I am from repeater batch. So this year I also didn't answer the last question. तो भी मैं इसके साथ कर देती हूँ. तो मैंने इस टाइम जब अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट की, बिकॉज मैंने इस एग्जाम से लास्ट ईयर के एग्जाम से मुझे पता चल गया था मेरी वीकनेस कहाँ है, मेरे स्ट्रेंथ पॉइंट कहाँ है, मैंने क्या मिस्टेक अपने लास्ट ईयर में की है, कैसे मेरे को अपनी कंसिस्टेंसी मेंटेन करनी है. तो उसी के थ्रू से मैंने स्टार्टिंग, जैसे हर पर्सन का स्टडी मतलब कोई डे पर्सन होता है, कोई नाइट पर्सन होता है, तो उसके वे से मैंने अपना जो स्टडी शेड्यूल था वो अपने अकॉर्डिंग डिजाइन किया था दिस ईयर. तो मैंने स्टार्टिंग में ही अपनी जो वीकनेस पॉइंट थे, अपने जो स्ट्रेंथ के पॉइंट थे, उनको कलेक्ट किया था कि कौन से सब्जेक्ट है जिसमें मैं लैग की हूँ इस ईयर, कौन से सब्जेक्ट है जिसको ज्यादा फोकस की जरूरत है, तो कौन से ऐसे सब्जेक्ट है जिसको मुझे याद भी है बट मुझे उसे बार बार रिवाइज करने की जरूरत है क्योंकि वो वोलेटाइल है.
तो मैंने अपना जो भी स्टडी टूल था, जो भी स्टडी मटेरियल था, वो मैंने अपनी लास्ट ईयर की प्रिपरेशन से कलेक्ट कर लिया था। मतलब मेरे को आइडिया हो गया था कि मेरे को जैसे चरक संहिता है वो थ्रू संहिता पढ़नी है, रसशास्त्र के नोट्स कहाँ से पढ़ने हैं, दर्भगुण के प्लांट्स की जो भी डिटेल है कितना पढ़ना है, कहाँ से पढ़ना है। तो मोस्टली तो मैंने जो बेस फॉर्म में था, तो मैंने सारे जो द्रोणा के नोट्स है वो कंप्लीटली, मतलब स्टार्टिंग में मेरी जो स्ट्रेटजी थी कि संहिता को साथ में लेके एंड जो जितने भी द्रोणा के नोट्स हैं, मतलब मेरा ये था कि स्टार्टिंग में तुम एड ऑन कर लो उसके ऊपर जितना भी, बट ये मुझे मतलब ऐसे रिवाइज होने चाहिए कि मुझसे इनसे कोई भी क्वेश्चन आए वो गलत ना हो। तो मैंने अपने स्टार्टिंग की फेज में जो भी स्टडी मटेरियल था, स्टार्टिंग में द्रोणा का कवर किया ऑलमोस्ट। देन जो मैंने उसके बाद जब मेरे को ये कॉन्फिडेंस आ गया कि आई कैन आंसर ऑल द क्वेश्चन फ्रॉम देम नाउ, तो मैंने जो भी एक्स्ट्रा नोट्स थे, एक्स्ट्रा पॉइंट्स थे, वो कलेक्ट करने स्टार्ट किए। और दिस ईयर ऑल्सो आई स्टार्टेड डूइंग एमसीक्यू फ्रॉम द स्टार्ट, क्योंकि लास्ट ईयर मैंने एमसीक्यू बहुत कम किए थे। मतलब मेरा फोकस यही था कि मैं उन नोट्स को रिपीट करती रहती थी, रिवाइज करती रहती थी बार बार, बट मैंने एमसीक्यू नहीं किया। बट जैसा कि हमें सबको पता है, लास्ट में हमें जो एग्जाम देना होता है वो एमसीक्यू फॉर्म में ही होता है। तो हमें जो भी अपनी मिस्टेक है कि हम क्या गलती कर सकते हैं, तो वो मैंने अभी से स्टार्टिंग से ही मैंने वो कलेक्ट करने स्टार्ट कर दी कि मैं क्या मिस्टेक कर रही हूँ एग्जाम में, कैसे मैं एमसीक्यू को, मतलब अगर मेरे को आता भी नहीं है या मतलब या कुछ, कैसे मेरे को मतलब एग्जामिनर डिफिकल्ट क्वेश्चन देके मतलब एक इजी से क्वेश्चन को भी हार्ड बना सकता मेरे लिए। तो वो चीज मैंने अपनी स्टार्टिंग से ही प्रिपेयर करनी स्टार्ट कर दी थी दिस ईयर, क्योंकि लास्ट में जितने आप AIPGT एग्जाम में कोई भी एमसीक्यू बेस्ड एग्जाम है, उसके लिए जितनी ज्यादा आप एमसीक्यू करोगे उतना ज्यादा ही आपके लिए प्रोसेस और इजी होती जाएगी इन लास्ट टाइम। Yeah, that's really motivating, man. And what about your last time revision, man? And study pattern you follow? मैम, अकॉर्डिंग टू मी, मतलब जो आपकी पूरे ईयर की मेहनत है वो इन लास्ट की, मतलब जब से मतलब डेट अनाउंस हो जाती है उसी पे डिपेंड करती है। मतलब अगर आपने पूरे ईयर में कुछ भी पढ़ा हो, अगर आप उसको लास्ट मिनट मतलब लास्ट मंथ में भी रिवाइज नहीं कर रहे हो, तो वो थोड़ा सा मतलब आपके लिए, मतलब जो भी आपकी मेहनत है वो वेस्ट होनी स्टार्ट हो जाती है। तो मेरे अकॉर्डिंग मतलब लास्ट मंथ प्रिपरेशन बहुत मैटर करती है, और मतलब आपके लिए इम्पोर्टेंट है कि जो भी आपने थ्रू द ईयर पढ़ा है उसको आप बार बार रिवाइज करो। तो मैंने अपने जो लास्ट मंथ थे, लास्ट के 2 मंथ थे, उसमें मैंने अपना जो स्टडी का शेड्यूल था वो मैंने चेंज कर दिया था। जैसे मैंने स्टार्टिंग में जो भी फोकस किया था वो मैंने फोकस किया था कि मैं सिलेबस को कवर करूं, और वो इतना फास्ट नहीं था, मैं उसको मतलब स्लोली की, मतलब मेरे माइंड में कितना जा रहा है मैं उसको रिकॉल कर पा रही हूँ, उस पे फोकस था स्टार्टिंग फेज में। बट जब लास्ट मंथ आए थे तो मैंने इस पे मतलब ज्यादा ये देखा कि मेरी मिस्टेक अब भी क्या हो रही है, और मतलब मुझे कौन से एरिया मतलब ज्यादा रिवाइज करने की जरूरत है। तो मैंने लास्ट मंथ में अपनी रिवाइज की टेबल बना ली थी कि मुझे जो कंप्लीट सिलेबस है वो मेरे को मतलब मोस्टली, मतलब जैसे क्योंकि हम बार बार रिवाइज करते वो मतलब जल्दी रिवाइज होना स्टार्ट हो जाता है लास्ट टाइम पे। मतलब स्टार्टिंग के फेज में तुम्हें टाइम लगता है कि किसी चीज में, किसी संहिता में तुम्हें लग रहा है मतलब 12 घंटे लग रहे हैं मतलब जो भी पढ़ने में, बट लास्ट टाइम में क्या होता है वो रिवीजन तुम्हें जैसे जैसे तुम्हारा फर्स्ट रिवीजन हुआ, सेकंड रिवीजन हुआ, थर्ड रिवीजन है, वो टाइम डिक्रीज करने हैं। तो लास्ट मंथ में मैंने अपनी रिवाइज की टेबल बनाई थी उसमें, ताकि क्योंकि मेरे माइंड में मतलब हमें पता है क्या करना होता है बट कभी कभी वो क्लियर नहीं होता। बट जैसे हमारी जर्नल होती है या हम उन टेबल पे उसे नोट डाउन कर लेते हैं तो हमारे माइंड के लिए क्लियर हो जाता है कि हमें कल क्या रिवाइज करना है और मतलब नेक्स्ट डे क्या रिवाइज करना है। तो मैंने लास्ट टाइम पे जो भी फोकस किया था वो मैंने बस रिवीजन एंड एमसीक्यू पे किया था। Yeah, ma'am, that would be really helpful for our upcoming PG doctors. Yes, And ma'am, shall we know any strategy you followed while studying? I mean, did you give any importance to specific subject? ma'am, one strategy which I want to give is revision from first day. I watched a video as all we know कि आयुर्वेदा में बहुत सारे सब्जेक्ट वोलेटाइल हैं। मतलब सभी स्टूडेंट की लास्ट में जाके यही कंप्लेन होती है कि कितना ही पढ़ ले वो हम भूल जा रहे हैं, मतलब याद ही नहीं है। तो स्टार्टिंग से ही मैंने जो भी, जैसे हम क्या फोकस करते कि सिलेबस हो जाए पहले,
फर्स्ट हमारा फोकस ये होता है कि हम सिलेबस कंप्लीट करें। बट दिस टाइम मैंने क्या स्टार्ट किया था कि मैं जैसे संगीता कर रही हूँ तो मैं उसका रिवीजन फर्स्ट डे से ही कर रही थी। जैसे मैंने फर्स्ट डे कोई सब्जेक्ट पढ़ा है, चाहे मैंने 10 शास्त्र पढ़ा है, तो मैं फर्स्ट डे उसका रिवीजन करती थी, फिर थर्ड डे रिवीजन करती थी, फिर उसका मैं रिवीजन 7th डे करती थी, और अपनी मतलब रिवीजन टेबल में ही फिर उसका मतलब 7th के बाद नेक्स्ट वीक उसका रिवीजन करती थी। तो ये स्ट्रेटजी मतलब लास्ट में बहुत हेल्पफुल है, क्योंकि हम जितना एक मतलब सब्जेक्ट को लीव करते हैं बीच में, उतना ही हम भूल जाते हैं। तो हम अगर मतलब ऐसे अपनी मतलब स्टडी को, रिवीजन को बीच में शेड्यूल करते रहेंगे विद हमारे एमसीक्यू प्रैक्टिस, तो ये बहुत ज्यादा हेल्पफुल है बच्चों के लिए। Yeah, of course. Correct, ma'am. Ma'am, I think solving maximum number of multiple choice questions, as you say, will be a game changer. And I hope that helped you to be the top. है ना मैम? यस मैम, यस मैम। आई थिंक द मेन थिंग इज कि तुम कितना पढ़ लो, बट तुम एमसीक्यू सोल्व कर रहे हो तो वो बहुत मैटर करता है तुम्हारे रैंक के लिए इन फाइनल एग्जाम। तो जैसे अब दिस ईयर आई स्टार्ट सोल्विंग एमसीक्यू फ्रॉम स्टार्ट। तो मैं स्टार्टिंग से जो भी पोर्शन पढ़ती थी, मैं मतलब उसका ये था कि नेक्स्ट 1 डे में या 2 डे में ये होता, मेरी ये प्लान होता था कि मैं उसके एमसीक्यू सोल्व कर लूँ। जैसे स्टार्टिंग में मैं सब्जेक्ट वाइज करती थी, फिर मैं मॉक से करती थी कि भाई मॉक में जो लास्ट ईयर जो क्वेश्चन आया उस सब्जेक्ट से रिलेटेड। तो एमसीक्यू प्रैक्टिस मैटर करती है बहुत ज्यादा फाइनल एग्जाम में। और इसलिए मतलब जो भी मैं मेरी सभी स्टूडेंट से है कि मतलब अगर तुम इस एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो तुम्हें एमसीक्यू प्रैक्टिस करनी चाहिए फ्रॉम स्टार्टिंग पॉइंट। अगर मतलब नहीं आ रहा आपको कॉन्फिडेंस, तो बट ये है कि 1 मंथ बाद स्टार्ट करें, बट एमसीक्यू प्रैक्टिस आपको करनी चाहिए फ्रॉम द स्टार्ट। Correct, ma'am. Exactly. And ma'am, as a Drona first rank holder, can you tell how we can utilize Drona Institute of Ayurveda to achieve our dreams? Yeah, ma'am. Drona Institute is very helpful in my this journey, and I also used to ask questions whenever I feel like this. I have doubt in this question. I have no hesitation, and I share it with my mentor, like why I got this question wrong. So द्रोणा इंस्टीट्यूट की मैम जो जर्नी है वो मेरे लिए इसलिए भी हेल्पफुल रही कि वो मतलब थ्रू द्रोणा की स्टडी आपके साथ कोई ऐसी फाउंडेशन नहीं है कि आप अपना स्टडी शेड्यूल प्लान नहीं कर सकते। तो मैंने स्टार्टिंग में जैसे द्रोणा ज्वाइन किया था, दिस ईयर आई टेक क्रैश कोर्स। तो मैंने जो थ्रू द्रोणा की जितने भी एग्जाम होते थे वीकली, वो मेरे लिए इतने ज्यादा हेल्पफुल थे स्टडी मटेरियल पढ़ने में। मतलब मेरे को जैसे स्टार्टिंग में जो कॉन्फिडेंस नहीं था ना कि मैं जैसे पढ़ लेती थी उनको, बट जब मैं वो क्वेश्चन करती थी और जब मैं रॉन्ग क्वेश्चन करती थी और फिर मैं उसे दोबारा जाके देखती थी नोट्स के थ्रू, उनको रिवाइज करती थी, तो वो जो जैसे रिमेम्बरिंग और रिकॉलिंग पावर थी वो मतलब वो अलग ही होती थी कि तुम एक क्वेश्चन गलत करके फिर उसको देखते हो ना जाके कि हाँ मेरा ये क्वेश्चन यहाँ से गलत हुआ, मैंने यहाँ पे इस क्वेश्चन पे ध्यान नहीं दिया था। तो द्रोणा के एग्जाम मेरे लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल जो एंड जो एग्जाम पैटर्न है वो सेम है AIPJT फॉर्म के जो एग्जाम पैटर्न। तो मैंने जिस ईयर में स्टार्टिंग में जैसे जो भी मेरे एग्जाम होते थे मैं सुबह मॉर्निंग में ही देती थी, मॉर्निंग में 9 PM के अराउंड, सेम विद लैपटॉप के साथ ही देती थी कि ताकि मेरी जो प्रैक्टिस है वो मतलब मेरे को लास्ट का जो एग्जाम उसमें मैं स्ट्रेस आउट ना हो, कि मतलब मुझे ऐसा ना लगे कि ये कुछ अलग हो रहा है मेरे साथ। मतलब मैं वो एग्जाम देकर जो भी जितने भी मैंने एग्जाम दिए द्रोणा के, मतलब इतनी मतलब प्रैक्टिस हो चुकी थी मेरी लास्ट में कि मेरे को कोई भी डर नहीं लग रहा था एग्जाम में। मेरा मतलब मेन जो कॉन्फिडेंस आता कि हाँ मैंने बहुत ज्यादा मेहनत की है और मैं इसमें भी अच्छा करूंगी। तो द्रोणा के एग्जाम आई रियली अप्रिशिएट कि मतलब बहुत ज्यादा मतलब तुम प्रैक्टिस करते हो ना, तुम्हें फील ही नहीं होता वो टेंशन लास्ट मोमेंट पे। एंड मैम मैं उनकी स्टडी मटेरियल की भी वो जो भी डॉक्टर ने सिलेक्ट किया है वो बहुत मतलब जो भी प्रिसाइजली हर मतलब टॉपिक को कवर करने की इतनी मतलब अगर मैं उन टॉपिक को नॉर्मली जैसे मैं नोट्स से पढ़ती थी तो नहीं होता था कवर, बट देन आई स्टार्टेड रीडिंग द्रोणा नोट्स एंड उसमें तुम ये है कि तुम लास्ट मोमेंट में जैसे रिवीजन में हमें ये है कि हम उसको लास्ट मोमेंट पे रिवाइज कर पाए, वो सारी जो क्वालिटी थी वो द्रोणा नोट्स में थी। मैं मतलब जो लास्ट मोमेंट पे मैं उनको 30 मिनट्स में ही मतलब जो बड़े बड़े सब्जेक्ट थे उनको कवर कर लेती थी इजीली।
तो आई फील, मैं तो मतलब लास्ट मोमेंट में जब मैं उसको रिवाइज कर रही थी एग्जाम से पहले, मैं ये सोच रही थी कि अगर मतलब ये नोट्स नहीं होते तो मेरे क्या होते, कि मैं वो पर्सन नहीं हूँ जो नोट्स बनाती हूँ। तो मेरे लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल थे लास्ट मोमेंट में द्रोणा के नोट्स। Of course, ma'am. And now you are a role model to all of us. Seriously. And ma'am, at last, we really wish to get some advices from your mouth to become the best in AIPGT, or to become a best in our profession or anything. We need some advices from you, ma'am, as you are one of our role models now. यस मैम, मैं जो मेन एडवाइस देना चाहूंगी स्टूडेंट को, कि स्टार्टिंग में जो भी इस एग्जाम के लिए प्रिपरेशन करना चाहते हैं, उन्हें अपना वाई पता होना चाहिए। मतलब अगर तुम इस एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो तुम्हारा स्टार्टिंग से ये माइंडसेट होना चाहिए कि मुझे ये एग्जाम क्लियर करना है विद ए गुड रैंक। मतलब अगर तुम्हारा माइंडसेट स्टार्टिंग से ही फिक्स नहीं होगा तो फिर ये बहुत लॉन्ग जर्नी है, और इसमें बहुत सारे डेज ऐसे आएंगे स्ट्रगल के, तुम मतलब कोई भी तुम्हारा मतलब ऐसे मन नहीं करेगा कि आज पढ़ने का मन नहीं है, बट उस डे जब तुम्हारे लिए डिसाइडेड है कि मुझे ये क्यों करना है, तो तुम्हारे पास अपने आप से ही मोटिवेशन आएगा, नहीं मुझे ये करना है और मुझे ये एग्जाम अच्छी रैंक के साथ करेक्ट करना है। सो माइंडसेट मैम गोल जर्नी में मैटर करता है। We will keep that in mind always, ma'am, to achieve the great success in life like you did. And thank you so much, ma'am, for your great words, and you are really an inspiration for all of us. Thank you so much, ma'am. Thank you so much, ma'am. Also, I'm very happy to share my journey with you. Thank you Okay, so ma'am. much.